और इसी बीच चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। जितने फीडबैक थे वो हम सब लोगों ने लिए, उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा. आई विल यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू brief you about what had happened during these last 6 months when we have started the preparation for the elections. मुझे मालूम है कि आप लोग शेड्यूल जानने के लिए इच्छुक हैं ज़्यादा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है. So friends, just to give you an overview, the Mizoram Assembly's term is on 17th December 23, then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 assembly constituencies हैं, वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 1/6 है. और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं, जो 16.14 करोड़ है कंबाइंडली, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 है. सो द एंटायर कंट्री बाय दैट स्टैंडर्ड वुड बी गोइंग टू पोल्स इन ऑलमोस्ट इन द 1/6 ऑफ द कंट्रीज spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80 plus voters, centenarian voters, and also the improving the election gender ratio for these states. अगर आप देखेंगे तो जो PWD हैं उसके टोटल वोटर्स की संख्या 17.34 lakhs है, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80 plus 24.7 and centenarian voters 32,410. All these three categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी. और फ्रेंड्स, द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे, इलेक्टर जेंडर रेशियो, तो दो स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज्यादा फेवरेबल है विमेन का. इट इज 1063 एंड 1012, विच इज अ वेरी हैप्पी स्टेट. इन अदर स्टेट्स ऑल्सो इट हैज इंप्रूव्ड because of the special efforts undertaking during the SSR. और इस SSR की वजह से इन सब में भी ये electoral ratio काफी बड़ा है. तेलंगाना is also very high, 9998, and so there is improvement even in the Rajasthan. Now, if you look at the inclusive electoral roll, we are emphasizing a lot. Let me repeat. जो electoral roll है वो पूरी तरीके से pure हो, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है. और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो एसएसआर पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है. सो जस्ट टू से दैट वुमेन वोटर्स, यंग वोटर्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स, ट्रांसजेंडर्स, सबके ऊपर में इस एसएसआर में जो इन 5 स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया, ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्टरल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर पोलिंग स्टेशन पे लेके आए. सो दिस इज द एफर्ट. हाउ डू वी फर्स्ट एंटर देम इनटू द रोल एंड देन ब्रिंग देम टू द पोल. सो फ्रॉम रोल टू पोल is the emphasis by which we are all working. So now, friends, very interesting and a special effort which the Commission is undertaking.
ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं पूरी कंट्री में 75 ऐसी कम्युनिटीज हैं और कमीशन ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो लास्ट पंक्ति में हैं, दे आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट in the human development indices in the entire country, in the amongst the voters. So we will enroll them fully. And as a happy reporting to you, in these 4 states we have 12 PVTGs and they have been enrolled 100%. तो ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि 100% एनरोल हुई हैं और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको किस प्रकार से हम पोलिंग स्टेशंस में लाने की कोशिश करेंगे। अगर यूथ की बात करें तो 60 लाख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 to 19 years in these 5 states. And as you are all aware, there was an amendment for qualifying dates to be changed to 4 dates instead of the 1st January of the every year. So उसकी वजह से 15.39 lakh voters are such who are completing their 18th year after the 1st January 2023. And because of this amendment, 15.3 lakh voters would be able to exercise their franchise in this election. This is the positive effect and of that amendment which we brought. And in line of that, we are also taking up to showcase that these 2,900 plus polling stations would be managed by our youngest employees, so that we also focus on and tackle the youth apathy which we keep encountering in states after states. Similarly, if we come to women, as I mentioned earlier, women का जो gender ratio है वो भी लगातार improve हो रहा है. So Chhattisgarh has improved from 995 to 1012. For Madhya Pradesh from 917 to a jump of 945. Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio. And Rajasthan and also Telangana from 982 to 998. And net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. तो अब एफर्ट ये है कि उनको पहले हमने पोल में जोड़ दिया और अब हम उनको पोलिंग स्टेशंस पर लेके आए by providing them all kinds of facilities which are possible. How do we do that? So if you look at the inclusive and pure nature of the electoral roll, since the efforts we are making after the second SSR which happened in these 5 going states, 57.89 lakhs is the total addition, and this happened. There is an house-to-house survey which is happening which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run-up to the SSR for the entire country. Deletions were 20.59 lakhs, and most importantly the modifications. किसी का एड्रेस गलत है, किसी का फोटो ठीक नहीं है, किसी का फोन नंबर डाला हुआ नहीं है, सबके लिए 22.35 लाख मॉडिफिकेशंस और 18 to 19 एज ग्रुप में 18.37 लाख एडिशंस. ये सभी स्लाइड्स की कॉपी आपको साइड बाय साइड मिल रही होगी. These are being put on the media's website and all. So you don't have to repeat this. I am sure you are getting it side by side, and it will be posted also in our website immediately. Next. Before coming to the overview of polling stations, friends, through you, let me tell everybody, all voters in the country, that the general SSR है, summary revision for the year 24 would start from 17/10/23. Draft rolls will be published on 17/10/23. तो मेरा सभी वोटर्स से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपना अपना नाम देखें, अपना अपना पोलिंग स्टेशन देखें. कोई भी नाम किसी को ऐड कराना है या हमारे यंग वोटर्स को तो ऐड कराएं, महिलाओं को जिसको भी ऐड कराना है ऐड कराएं उसमें. किसी को चेंज करना है, फोटो चेंज करनी है, मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखाएं. घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे would be undertaken by BLOs from 17/10/23 to 30/11/23, यानी 17 अक्टूबर 23 से 30 नवंबर 23 तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है, कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है, एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रू BLO or through the voter helpline BHA application. You can directly do this.
So I would appeal through you to everybody to kindly make these changes. Friends, now coming to the polling stations, there would be 1.77 lakh polling stations in these 5 states, and of which 1.01 would have webcasting facility. We have prescribed 50% webcasting, and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own. So this would be close to 1.01 lakh. Then all this would be monitored through the control rooms, and the number of women managed polling stations there would be 17,734 polling stations which will be model polling stations. There would be PWD managed polling stations, 621, and women managed would be 8,192, more than one in most of the constituencies. Coming to the assured minimum facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, लाइट, हेल्प डेस्क, साइनेज, सभी पोलिंग स्टेशंस पे सुविधा होगी। और प्रयास यह है कि पहले आपको पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल करें, शामिल करने के बाद आपकी जो वोटिंग एक्सपीरियंस है पोलिंग स्टेशन पे, उसको भी और सहज और सुगम बनाएं, और उसको ये भी माध्यम बनाएं कि सोसाइटी में पीडब्ल्यूडीज, ट्रांसजेंडर, वुमेन, ओल्ड एज, सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू द मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, and we showcase and we put an example before the society that yes, at the polling station, when we can do this respect and the separate treatment for them, which is their due, why can't we do it elsewhere in the society? So this is our modest effort to bring this fact into the limelight. Coming to the elderly voters, as you know, in all these states also, they will have the facility to vote from their home. Form 12D 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं. Similarly, next, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड जो आपको दिखाना था. बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुंच सकें. अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है. 8 किलोमीटर इससे बचेगा चलना. जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़, दिस इज दोज एरियाज. सिमिलरली इन राजस्थान, दिस इज ऑल्सो न्यू बूथ. तो एक स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े. वैसे भी हमारा नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर में हम देंगे, बट जहां पॉसिबल नहीं था वहां भी हम भर रहे हैं. इसी प्रकार से जो हमारे, मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना रहे हैं. बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा, जो कि मांडला एमपी में, जस्ट दी शोकेसिंग. और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें, पिपरिया डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा एमपी, इसमें 165 kilometers from district headquarters, tribal dominated district. People will go, and this is the kind of rivers and all terrain they will cross. This is in Mizoram, 22 non-motorable polling stations. तो ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा है कि जो पोलिंग पर्सनल हैं वो कितनी मेहनत से, कितनी दूर में अपना ड्यूटी करने जाते हैं. और 6 महीने की तैयारी सिर्फ इसीलिए है जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाएं. और इसीलिए आई विल लाइक टू अपील थ्रू यू टू ऑल दी वोटर्स ऑफ दीज 5 स्टेट्स कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आएं. स्पेशल रिक्वेस्ट टू यूथ, विमेन एंड दी पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, दोज वेयर वी सी ए लिटिल एपैथी. फ्रेंड्स, आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की, और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे. और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है. नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी
आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना, क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था. Once they give this information, it is for the voter to decide on the basis of an informed choice as to what he wants to do. Another new initiative we have taken is on the integrated election expenditure monitoring. कुछ समय पहले, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम सोचते हैं हमें मिलेंगे, और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए नया इनिशिएटिव है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहां से कितने पैसे मिले, और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है. तो पीछे ये देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थी, और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी. तो इन सभी चीजों को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू IT सिस्टम हैज बीन स्टार्टेड, and in which the contribution report which is due of every year by 31st October would have to be filled. Similarly, annual audit reports political parties को अब इसी IT tools में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे, और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को आफ्टर एवरी इलेक्शन, जिसमें वो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव खत्म हो, और 75 डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट, ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया. तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा. दिस विल हेल्प इन ईज फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू फिल अप दिस डिटेल्स ऑनलाइन, एंड वुड ऑल्सो हेल्प अस इन कीपिंग इट एट वन प्लेस एंड डू वॉट एवर assessment and analytics is possible in addition to housekeeping. Similarly, जो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस का फोकस चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है, उसके लिए भी एक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम इस बार नया शुरू किया जा रहा है इन 5 असेंबली इलेक्शंस में. व्हाट इज दिस? जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं, जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल, कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए. डोंट वर्क इन साइलोज, वर्क इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, बट इट डजंट गेट कोऑर्डिनेटेड ऑफन. सो दिस सिस्टम विल गिव एन एक्सेस, will onboard all the central and state enforcement agencies during the election period, and they will have to report as soon as any action they take. And if they don't fill up, it will also tell us that for so long no action has been taken by a particular agency. This will also help us in compiling, do the trend analysis, do various kinds of things possible in that particular state. और आप सब अवगत हैं कि हर स्टेट के बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं. अगर मिजोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है तो राजस्थान में भी वही इशू है, तो कहीं पर इंटर स्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है. ऑल दैट विद द हेल्प ऑफ द रिस्पेक्टिव एनफोर्समेंट एजेंसीज वुड गेट कोलेटेड, एंड वी होप would also get analyzed on a far more real-time basis, so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them. In this reference, we have got some checkposts established, which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, in all 940 checkposts. These 940 checkposts belong to different enforcement agencies, which is namely, by and large, police, state police, excise, commercial taxes, forest and transport. तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं. Now what we have directed them to do a coordinated effort, pool their resources, establish synergies. पांचों एक साथ मिलके काम करें. और क्या काम करें? इन 940 प्लस चेकपोस्ट पर इंटर स्टेट बॉर्डर्स में दे विल कीप ए वेरी स्ट्रांग वॉच एंड
we have almost told them to dry up inflow of cash, liquor and drugs. आपको जब पिछले कर्नाटका इलेक्शन हुआ तो वहां जाने के बाद जब हम रिव्यू करके आए तो जो 2018 का सीजर था वो एमसीसी अनाउंस होने तक उससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था. So this is a renewed focus and all the checking of cargo movement through non-scheduled chartered flights. This we will issue the guidelines also in greater detail. ऐसी संभावना होती है कि जो पैसेंजर्स के अलावा कार्गो मूवमेंट्स है उसमें भी कुछ ना कुछ इन पोल बाउंड स्टेट्स में कोई मटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू जा सकता है. कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो. मनी पावर, all these agencies have been strictly asked to keep strict vigil and report in the system which we have stated just before this. Number of observers will be deputed, the general observers, police observers and the expenditure observers, and adequate CAPF. Similarly, the directions again at the polling stations, wherever necessary, we will keep the female staff to check impersonation. We will keep polling parties to move only in the official vehicles, ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट व्हीकल में बैठ गए थे उस तरह की घटना ना हो. ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, so that people can know which booth, which place, though we request them to check that much in advance on the voter helpline app. नया एक और चेंज इस बार किया गया है because of the experience which we had in certain states. जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे till the date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been changed now. ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. So this could be a post poll opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected and the postal ballot facility is available in the same sense but at the facilitation center. Next. Now coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement free elections because money power is one thing which we want to restrict, we now will come to the schedule which you are awaiting state by state, and now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram in for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October.
and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up, just keep sitting and just put up your hands and I'll direct the micer to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको भेज दिया होगा. So it's being tweeted to you. इट्स बीइंग ट्वीटेड, बट हम दोबारा रिपीट कर दीजिए. Yeah. मिजोरम विजिबल टू ऑल. नेक्स्ट मध्य प्रदेश, डेट ऑफ पोल 17th नवंबर. राजस्थान 23rd November and Telangana 30th November. We are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. Yeah, floor is open for questions. Gentleman in the first row. Yeah. उनको माइक दे दीजिए. We'll come to you next. आपको आएंगे सेकंड. गुड आफ्टरनून सर, मोहित दुबे हूं सर, न्यूज नेशन चैनल से. सर मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में आप मतदान करा रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है कई. सरकार का दावा है कि नक्सलिज्म तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन इस बार भी आप 2 चरणों में मतदान करा रहे हैं. कितनी बड़ी चुनौती जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको मतदान कराने के मद्देनजर, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा. इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में तमाम कैश और लिकर की बरामदगी हुई थी. इस बार कितनी चुनौती तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपको लेकर होने वाली? बड़ी खबर आपको दे रहे हैं. 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. यह अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है. आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी. बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान जो है वो रहने वाला है. ये बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रही हैं. दरअसल जानकारी आपको दे दें कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है. बड़ी और अहम जानकारी, 23 नवंबर को राजस्थान में मतदान होगा. छत्तीसगढ़ में भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 23 नवंबर को जो है राजस्थान में मतदान रहेंगे. मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा और छत्तीसगढ़ में भी 7 और 17 2 चरणों में जो है मतदान रहने वाले हैं. तो ये फिलहाल जो है चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है और 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो सामने आ जाएंगे. फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रही हैं, मध्य प्रदेश में भी 17 नवंबर को वोटिंग होगी. 5 राज्यों में चुनाव के जो ऐलान है वो कर दिया गया है. 23 नवंबर से शुरू हो जाएगा. सबसे पहले राजस्थान में मतदान रहने वाला है 23 को और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 2 चरणों में जो है वोटिंग की प्रक्रिया रहने वाली है. तो इस बार जो है 2 चरणों में रहने वाला है चुनाव. वहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में आज जो है चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी बुगल फूंक गया है. और जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में पिछली बार की तरह इस बार भी जो है कुछ चरणों में बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है. छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान कराया जा रहा है. अब फिलहाल इस वक्त जानकारी जो है निकलकर सामने आई है. बैठक में जो कहा गया है कि 17 अक्टूबर से वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी बदलाव कराना है, करा सकता है. ये बीएलओ के जरिए या सीधे वेबसाइट के जरिए आप करा सकते हैं. और 5 राज्यों में
1.77 लाख पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। पोलिंग बूथ 2 किलोमीटर से दूर नहीं होगा। ये चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी जो है दी गई है। 31 अक्टूबर तक पार्टियों को चंदे की जानकारी देनी होगी, तभी इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग ने सभी 5 राज्यों का दौरा किया है और सभी राज्यों की राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की। इसके अलावा जो है सरकारी एजेंसियों को लेकर भी जो है यहाँ पर राज्य सरकार के साथ बैठकें की है। हमने राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की है, उनके सुझाव और फीडबैक लिए हैं। तो मिजोरम का कार्यकाल क्योंकि दिसंबर 2023 में खत्म हो रहा है, बाकी राज्यों का कार्यकाल जनवरी 2024 में कार्यकाल खत्म हो रहा है और इन 5 राज्यों में 259 विधानसभा सीटें हैं। साथ ही साथ इन राज्यों में 16.14 करोड़ से अधिक वोटर हैं और फिलहाल छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर इस साल के अंत पर जो है वो चुनाव रहने वाला है। 2 चरणों में रहेगा, 7 और 17 2 चरणों में जो है इस बार मतदान जो है रहने वाला है। राजस्थान में 23 को और मध्य प्रदेश में 17, क्योंकि एक चरण में ही यहाँ पर रहेगा। तेलंगाना में भी 1 चरण में हो रहा है और छत्तीसगढ़ में जो है 7 और 17 2 चरणों में जो है इस बार वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को जो है सारे नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो फिलहाल ये जानकारी जो है चुनाव आयोग की तरफ से दे दी गई है। राजस्थान में 23 को रहेगा, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग रहने वाली है और क्योंकि पिछले बार के नतीजे काफी अलग रहे थे, इस बार क्या रहेगा इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। छत्तीसगढ़ की 90 सीटें हैं, मिजोरम की 40 सीटों पर मतदान होगा। तेलंगाना में भी इस साल के आखिर में चुनाव रहने वाला है और राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों पर जो है वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 230 सीटों पर जो है चुनाव किए जाएंगे और क्योंकि राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को समाप्त होने वाला है, तो फिलहाल नवंबर के दूसरे हफ्ते में जो है ये वोटिंग हो रही है। 5 राज्यों के चुनाव का तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इसी के साथ ही आचार संहिता जो है वो लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भी 17 नवंबर को जो है वोटिंग होगी। सिर्फ छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर 2 चरणों में जो है वोट डाले जाएंगे, बाकी सभी राज्यों में 1 चरण में ही मतदान रहने वाला है। मध्य प्रदेश में 17 को है और साथ ही साथ राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग है। 17 ही को छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज की जो है वोटिंग रहने वाली है और नतीजे जो है सभी राज्यों के 3 दिसंबर को एक साथ आएंगे। तो राजस्थान में 23 नवंबर को 200 सीटों पर मतदान रहने वाला है, 101 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को रहेगा 230 विधानसभा सीटें, 116 बहुमत का आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को रहेगा, 90 सीटें हैं, 46 बहुमत के लिए चाहिए सीटें। तेलंगाना में 30 नवंबर को रहेगा, 119 सीटें हैं, 60 बहुमत के लिए हैं और मिजोरम में 7 नवंबर को ही रहेगा। छत्तीसगढ़ के पहले चरण के साथ मिजोरम में चुनाव रहेंगे, 40 सीटें हैं, 21 बहुमत के लिए चाहिए और रिजल्ट जो है वो 3 दिसंबर को सभी का एक ही साथ आएगा। तो फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन राज्यों में 16.14 करोड़ मतदाता है, इनमें 8.2 करोड़ पुरुष मतदाता है, 7.8 करोड़ महिला मतदाता है और इस बार 60.2 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा से अधिक जानकारी ले लेते हैं। दीपक, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया है, विस्तार से बताएं, चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन बातों का जिक्र किया है? जी बिल्कुल, अगर बात करें 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है। 5 राज्यों का चुनाव, जिसमें राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, मिजोरम की बात की जाए, तेलंगाना की बात की जाए, ये 5 राज्यों का चुनाव, जिसमें तकरीबन अगर बात करें 600 जो है 79, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर 679 तकरीबन जो है सीटों पर जो है यहाँ पर चुनाव होना है तकरीबन, अगर इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। और खासकर 16 करोड़ अगर मतदाता इस बार मत करेंगे, मताधिकार का उपयोग करेंगे और उसको लेकर के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 3 दिसंबर को
एक साथ इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे लोगों के सामने होंगे। 5 राज्यों में चुनावी समीकरण किस तरीके से रहे, किस और लोगों का रुख गया, उसको लेकर के यहाँ पर अगर बात करें, चुनाव आयोग ने जो प्रेस वार्ता के बाद तारीखों का ऐलान करा वो होगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, ये 5 राज्यों का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। 2024 के सत्ता का सेमीफाइनल, लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल, जिसमें तमाम अगर अलग अलग राज्यों की बात करें, हालांकि राजस्थान किस तरीके से राजस्थान का रुख रहता है, जहां पर जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें तो अभी सरकार है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन किस तरीके से सीटों का जो अनुपात था वो ज्यादा नहीं रहा था और कहीं ना कहीं एक सरकार अल्पमत में थी, लेकिन किसी तरीके से समर्थन के जरिए वो चाहे इसी तरीके छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तमाम इन बातों को लेकर के आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और इसके साथ ही अब चुनावी रणनीति भी तेज हो गई है। इस वक्त हालांकि हम कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हैं, जहां CWC की बैठक चल रही है इन्हीं चुनावों को लेकर, लेकिन जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ है, मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा, मध्य प्रदेश में 7 नवंबर को होगा, राजस्थान में अगर बात की जाए तो 23 नवंबर को मतदान है, तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर है, 2 चरण में है और 3 दिसंबर को एक साथ अगर बात करें चुनाव नतीजे सामने आएंगे और अब कहीं ना कहीं राजनीतिक दफ्तरों के बाहर, कार्यालयों के बाहर इसी तरीके की तस्वीर नजर आएगी जैसा कि इस वक्त कांग्रेस के दफ्तर के बाहर नजर आ रही है। और ये चुनाव आयोग की तरफ से जो तारीखों का ऐलान किया गया, एक और बात स्पष्ट की गई है, हालांकि तारीखें फिर बताना चाहेंगे कि मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में 7 तारीख को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में हालांकि 2 चरण में है तो 17 नवंबर को भी होगा। इसके साथ साथ राजस्थान में बात की जाए तो 23 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। 5 राज्यों के नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को सामने आएंगे। 3 दिसंबर का दिन जो कि कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जो सत्ता का जो संग्राम है उससे पहले ये सेमीफाइनल होगा, इसको लेकर के है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात, इस बार कुछ और जो बातें साफ तौर से ध्यान में रखी गई हैं, चुनाव आयोग की तरफ स्पष्ट किया गया है कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो दावेदार जो होंगे, जो उम्मीदवारी के तौर पर आएंगे, उनको बाकायदा 3 बार अखबार में निकालना पड़ेगा कि उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है। तो इसके अलावा जिस राजनीतिक दल से वो जो है अगर बात करें टिकट लेकर आएंगे, उस राजनीतिक दल को भी ये बताना पड़ेगा कि उस विधानसभा से उसे क्यों चुना गया है, उस विधानसभा से उसे जगह क्यों दी गई है। राजनीतिक दल को भी ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करना पड़ेगा, यानी कि इनके ऊपर पूरी नजर रहेगी। अपने पैसे जितने भी खर्च करेंगे उसकी पूरी रिपोर्ट देनी होगी। नए मतदाताओं की बात की गई है, तकरीबन 60 लाख से ज्यादा नए मतदाता हैं जो युवा हैं, वो इस बार मतदान करेंगे। करीबन 16 करोड़ मतदाताओं में 60 लाख नए जो है जो पहली बार मतदान करेंगे, ऐसे लोग भी इसमें रहने वाले हैं। तमाम बिंदुओं को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई थी कि 7.8 करोड़ जो है 7 करोड़, जिस तरीके से अगर बात करें तो 7.8 ये ऐसा आंकड़ा है जो कि महिला वोटर होंगे, इसी तरीके से 8.2 जो पुरुष, यानी कि तकरीबन 8 करोड़ के आसपास ही दोनों हैं। 16 करोड़ मतदाता जो है अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और तकरीबन जिस तरीके से बात कर रहे हैं हम, ये पूरा जो मतदान है लोकसभा चुनाव से पहले, सत्ता का महासंग्राम का जो 2024 का उससे पहले का यह सेमीफाइनल है जो तमाम राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी चुनौती है। राजनीतिक दल कांग्रेस को अपने राज्य बचाने हैं, दिखाने हैं कि कांग्रेस राजस्थान में मजबूत है या नहीं, छत्तीसगढ़ में मजबूत है या नहीं, मध्य प्रदेश में जो पिछली बार हुआ क्या इस बार लोग उनका साथ देंगे या नहीं। भले ही बीजेपी से ज्यादा सीटें थी लेकिन किस तरीके के समीकरण रहे। इसी तरीके से बीजेपी के सामने चुनौती है कि केंद्र में सरकार है, लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश में क्योंकि उनकी सरकार बनी है, लेकिन इस बार दोबारा लोगों का उनको सीटें मिले, बढ़ के मिले, ये दिखाना है। राजस्थान में एक समीकरण रहता था कि एक बार कहीं ना कहीं बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, लेकिन इस बार क्या वो इतिहास बदलेगा? कांग्रेस के बाद दोबारा कांग्रेस आती है या बीजेपी यहाँ पर आती है? जो जिस तरीके से यहाँ समीकरण रहते हैं, इस बार बीजेपी वहाँ पर जीत हासिल करेगी या नहीं राजस्थान में, ये समीकरण रहेंगे। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 90 विधानसभा का ये अगर बात करें छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल जिस तरीके किस तरीके से समीकरण वहाँ के रहे, कैसे तमाम चुनौतियां रही और लोकसभा चुनाव से पहले है, लेकिन ये तमाम चुनौतियां नजर आ रही हैं राजनीतिक दफ्तरों के बाहर। आपको दिखाएंगे किस तरीके की भीड़ जो है वो राजनीतिक कार्यालयों के बाहर जो है। ये कांग्रेस का अगर बात करें तो दफ्तर है,
दिल्ली में 24 अकबर रोड AICC जो कांग्रेस का दफ्तर है उसके बाहर जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं और ये कहीं ना कहीं वो दावेदार हैं या दावेदारों के समर्थक हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। और अब इस तरीके से ही अगले कई दिनों तक वो बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तमाम राजनीतिक दफ्तरों के बाहर इसी तरीके की कुछ भीड़ नजर आने वाली है। तमाम लोग अपने अपने राज्यों को लेकर के यहाँ पर अपने अपने दावेदारों को लेकर या अपनी दावेदारी खुद की या अपने समर्थकों की दावेदारी को लेकर के अब पार्टियों के दफ्तर के बाहर नजर आएंगे। तो चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, तारीखों का ऐलान, 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान जो है कर दिया गया है। 5 राज्यों की अगर बात की जाए तो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है और 7 तारीख को पहला दिन होगा जब मतदान होगा। हालांकि अगर हम बात करें तो 7 तारीख को होगा पहला दिन जब मतदान होगा। तो तमाम जो समीकरण है जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है चुनाव को लेकर के तमाम जो पार्टियां लगातार तेज है, लेकिन तारीखें को फिर जाएंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 2 चरण में है, मध्य प्रदेश में भी 7 नवंबर को है, राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को। 5 राज्यों का ये चुनाव किस तरीके से रहेगा ये तमाम समीकरण और ऐसे में 16 करोड़ मतदाता तय करेंगे। लेकिन इसका तय जरूर इसका कहीं ना कहीं इसकी जो साख है, क्योंकि 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों का माहौल भी कहीं ना कहीं और तेज होगा और कहीं बनेगा। ये 5 राज्य कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों की जो तैयारियां हैं जो तमाम दल कर रहे हैं देश के तमाम लोकसभा सीटों पर, उनको भी कहीं ना कहीं एक और हवा देगा। जी बिल्कुल दीपक, और क्योंकि छत्तीसगढ़ कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिसमें छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं 2 चरणों में यहाँ पर मतदान रहने वाले हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में थोड़ा मुश्किल जरूर होता है क्योंकि लगातार वहां पर जो घटनाएं निकलकर सामने आती हैं और ये भी कोशिश है कि इस बार जो पोलिंग बूथ है वो ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है 2 किलोमीटर के दायरे पर ही इन पोलिंग बूथों को बनाया जाए। ये कुछ बड़ी बातें जो है चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है। जी बिल्कुल, 2 किलोमीटर के दायरे में ही जो है पोलिंग बूथ रहे। पोलिंग बूथों की संख्या इस बार बढ़ाई गई है। जिस तरीके से अगर बात करें पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बढ़ाए गए हैं और खासकर जिस तरीके से अगर हम बात करें मॉनिटरिंग को लेकर के टीमें बढ़ाई गई हैं। किसी तरीके का विरोध सामने ना आए, किसी तरीके की अगर ऐसी कोई बात आती है, हिंसा आती है तो उसको कैसे निपटा जाएगा, उसको लेकर क्या तैयारियां, तमाम बातें यहाँ पर रखी गई हैं। छत्तीसगढ़ क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह के उनका कहना है उसको लेकर के भी बाकायदा तमाम प्रबंध हैं लगातार जो है किए गए हैं ताकि जिस तरीके की घटनाएं सामने आती है उसको लेकर के पूरी नजर रखी जा सके। लेकिन इस बीच आपको ये भी साथ कैमरामैन चाहेंगे तस्वीरें दिखाते रहे सीसी के बारे में। लेकिन जहां तक हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो हो चुका है। और मिजोरम में अगर बात करें जिस तरीके से 7 नवंबर को मतदान होगा, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को होगा, 2 चरण में हो रहा है। तमाम यहाँ पर राज्यों को लेकर के अब तैयारियां, चुनावी जो तैयारियां हैं वो तमाम राजनीतिक दलों की तेज हो चुकी हैं। कई यहाँ पर बातें रखी गई हैं, आपराधिक प्रवृत्ति वालों पर नजर रखी जाएगी, ऐसे लोगों को क्यों टिकट दी गई है या जो लड़ना चाह रहा है उसे भी 3 बार अखबार में बताना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम ऐसी जगहों पर, राजस्थान पे सुरक्षा की दृष्टि से उनका कहना है कि पूरे प्रबंध हैं 2 किलोमीटर के दायरे में ही। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो पोलिंग बूथ होंगे, 16 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। ऐसे में तमाम इन चुनौतियों के बीच में अगर बात करें चुनाव का ऐलान, 5 राज्य जो कि 2024 के लोकसभा के रण से पहले, केंद्र के चुनाव से, लोकसभा के चुनाव से पहले ये 5 राज्यों का चुनाव जो है कई मायनों में काफी अहम रहने वाला है। जी बिल्कुल दीपक, और ये 5 राज्य इसलिए भी अहम है क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और इन 5 राज्यों की अगर मैं बात करूं तो इन 5 राज्यों में कहीं ना कहीं ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस सत्ता में है या फिर अन्य पार्टी सत्ता में है। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती इन सभी सीटों पर रहने वाली है। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब पहले नतीजा अगर हम 2018 के देखें तो वो कांग्रेस के पक्ष में थे। गुणा भाग कुछ इस तरीके का हुआ कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। लेकिन ये 5 राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चुनौती भरे रहने वाले। जी बिल्कुल, ये 5 राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बड़े चुनौती वाले रहने पड़े हैं कि कैसे बीजेपी वहां पर अपना करेगी। मध्य प्रदेश की बात करें
तो बीजेपी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पास थी। 109 सीटों की बात करें तो वो बीजेपी के पास, 114 सीटें कांग्रेस के पास थी। लेकिन सहयोगियों की बात करें तो अन्य जो दल हैं उनके जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी वहाँ सत्ता पे रही और वहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार में पलटवार बीच में देखा भी गया। लेकिन ऐसे में अगर हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने वहाँ सरकार तो अब बीजेपी की थी, लेकिन आंकड़े वोटिंग के हिसाब से सीटें वो कांग्रेस के समर्थन में ज्यादा थी। राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन ऐसे में अब बीजेपी को वहां दिखाना है कि कितना समर्थन मिला। और खासकर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पिछले लंबे समय से ये चलता भी रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लोग कहीं ना कहीं अलग अलग दलों को मौका देते रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस के बाद क्या वाकई में वही प्रक्रिया चलेगी या कांग्रेस दोबारा से यहाँ पर आएगी, इतिहास बनाएगी, या बीजेपी जो दावा कर रही है कि बहुमत के साथ सरकार बनाने का राजस्थान के अंदर, इसको लेकर के क्या कुछ रहता है, मध्य प्रदेश को लेकर क्या रहता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, ये तमाम कहीं ना कहीं समीकरण है। सबके सामने एक बड़ी चुनौती है बीजेपी जिसकी केंद्र में सरकार, लेकिन अब इन राज्यों में किस तरीके से उनका चुनावी समीकरण रहेगा इस बार, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले बड़ी चुनौतियां इनके सामने हैं। 2024 के पहले इन 5 राज्यों के चुनावों में खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हम राजस्थान की बात करें, कितना समर्थन मिलता है बीजेपी को, बड़ी चुनौती है। और कांग्रेस कैसे बरकरार रखती है। मध्य प्रदेश के चुनाव में हालांकि कांग्रेस बीजेपी से आगे थी, लेकिन जिस तरीके से समीकरण रहे आखिर सरकार तो उस समय बीजेपी की ही बनी। हम छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, माहौल की आप देख सकते हैं, 90 विधानसभाओं में बात करें तो कांग्रेस के पास 68 सीटें थी। यहाँ पर अगर बात करें, बिल्कुल दीपक, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा, आप सुनिए जरा। मिजोरम हैज 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. तो फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों का ऐलान कर दिया गया है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे में वहां पर 2 चरणों में जो है इस बार मतदान रहने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ में 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। 90 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव नतीजे में कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला था और भाजपा के खाते में जहां सिर्फ 15 सीटें आई थी, कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी और बाद में कुछ विधायकों ने पार्टी भी बदली थी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 71 हैं, भाजपा के पास 13 हैं, बसपा के पास 2 हैं। 3 विधायक अजीत जोगी की पार्टी के साथ 1 सीट खाली है। राज्य के मुख्यमंत्री फिलहाल भूपेश बघेल हैं। वहीं अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो 25 सालों से राजस्थान में हर बार जो है सरकारें बदलती हैं। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में यहां 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। अलवर की रामगढ़ सीट पर बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया था, जिसके चलते एक सीट पर चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। तो 99 जो है वो कांग्रेस के खाते में है। रालोद ने यहां कांग्रेस को समर्थन किया और इसके बाद 1 सीट आई है। इस तरह कांग्रेस को 100 सीटें मिली हैं और सरकार बनाई है। बाद में 2019 में हुए रामगढ़ के सीट में भी कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं और ऐसे में कांग्रेस के पास 101 सीट है और अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो 2018 में जो चुनाव रहा था उसमें कांग्रेस के पास 114 सीटें थी, बीजेपी के खाते में 109 सीटें थी, बसपा को 2 मिली थी, सपा को 1 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने गठजोड़ करके बहुमत का 116 का आंकड़ा पार लिया था और कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 15 महीने ही कांग्रेस की सरकार टिक पाई थी। Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th
the 13th, and the last date would be 20th, date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. चलो वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।